Good morning, my lovely students. I am sure that listening to my voice, you would have recognized me. मेरी आवाज़ सुनते ही आप पहचान गए होंगे. कौन आया? कौन आया? Do you remember? Let us see. Today we will do English subject of class 4th and unit 9. और मैम ने किसकी फोटो लगाई हुई है? बुक्स. यू आर राइट, बुक की फोटो लगाई है. तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में बुक्स पोएम रिसाइट की थी, रीड की थी, और मैंने जो एक्सप्लेन की थी और आपने जो मेमोराइज की थी, उससे आगे बढ़ेंगे. राइट? एंड आई होप एंड आई नो कि मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों ने अपनी मैम को कम से कम 4 लाइन्स मेमोराइज करके, याद करके सुनाई होंगी. वेरी गुड, कीप इट अप, आई एम वेरी हैप्पी. सो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, उसमें बुक्स वाली पोएम में आगे क्या है. ओके और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. मैं नहीं बताऊंगी, आप अपने आप बताएंगे और आप अपने आप करेंगे, बिकॉज यू आर super cool kids. Yo. So let me tell about myself. Yes, you're right. I am Anuja and I am assistant teacher at Atal Adarsh Vidyalaya, Aurangzeb Lane. That's me and that's my school. Right? So अब मैम आ गई हैं. जब देखो मैम पढ़ाई की बात करती रहती हैं. इतनी ठंड में उठा के बिठा देती हैं ऑनलाइन क्लास के लिए. शी डजंट इवन नो इट्स विंटर एंड कोल्ड सीजन. और कोल्ड के सीजन में सुबह सुबह क्या मिलनी चाहिए? बताइए बताइए, क्या मिलनी चाहिए? यू आर राइट, चाय चाय, कॉफी कॉफी, चाय चाय, coffee, coffee. Train at the station, ready to go. The signals green, the whistle blow. We are on our way, chucking away. Thadak, thadak, tak 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 tak. Chai, chai. Coffee, coffee. Chai, chai. Coffee, coffee. Bridges, brook, forest fields, hills and mountains, tunnel deeps. We're on our way, chugging away. Tadak, tadak, tagarak, tagarak, dagarak, dagarak. Chai, chai. Coffee, coffee. 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 I want coffee. Woohoo. That's quite energetic. I know you all loved it. So, before I start, I would like to ask, how's the Josh? Hi, ma'am. That's all of you have to say. So, raise your hand and ask me this question. Ma'am, मेरे को ये वीडियो क्यों देखनी है? मैं अपना माशा एंड द बेयर देख लेता हूँ. मैं अपना पेपा पिग देख लेती हूँ. अरे मैम will also do some fun with you. So you have to ask your ma'am, why should I watch this video? मैं इस वीडियो को क्यों देखूं? और what will I learn from this video? मैं इस वीडियो से क्या learn करूँगा? Okay. I'll tell you. After watching this video, my super cool kids will be able to read and write the answers of the questions and enjoy doing the exercise of this poem book. सभी को क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे अपने आप करने, और सभी बच्चे मस्ती से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, यू ऑल हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स. that's like this, you have to watch this video. Understood? ऐसे वीडियो देखनी है. So, take out, open your books, take out your notebooks, take out your blue pen and take out your black pen. 3 things I have requested you to take out: your English book, notebook, blue and black pens.
Open the page number 149. Put the heading Poem Books. Exercise questions, page number 149. जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे. Understood? So, the first question says, what did the library door say? What means क्या? WH फैमिली के क्वेश्चंस आपकी मैम ने कराए होंगे, तो उनमें से है फर्स्ट क्वेश्चन what. What means क्या? लाइब्रेरी डोर ने कहा. लाइब्रेरी डोर से क्या कहा बताइए मुझे. यस, फर्स्ट लाइन में ही आंसर है. वेरी गुड एवरीवन. कम इन, अंदर आ जाओ. तो लेकिन जब हम आंसर्स लिखेंगे हमें अपना आंसर क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा. जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी हुई है वहीं से हम अपना आंसर पिक करेंगे. द लाइब्रेरी डोर said. Say will turn to said to come in the library. आपको ऐसे ही लिखना है, क्वेश्चन विद ब्लैक पेन एंड आंसर विद ब्लू पेन. Don't forget to put full stop and question mark, and don't forget to use the first alphabet as the capital. ठीक है, punctuation correct होनी चाहिए. Written everybody? Good. Let's come to the second question. What did the books in the library look like? What? अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था what means क्या. बुक्स लाइब्रेरी में जो हैं वो कैसी दिखती हैं. ठीक है, तो फिर से जब हम आंसर लिखेंगे वी विल पिक द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वहां से पिक करेंगे. कैसी दिखती थी बुक्स बताइए. सम बुक्स वर लाइक टॉल, वेरी गुड. स्किनी, वेरी गुड. लिटिल, very good. And fat, wonderful, nice job. Ma'am is clapping for you. The books in the library looked. Look था, looked हो जाएगा, ed add हो गया. Looked tall, skinny, little and fat. Okay? Done everybody? Cool. The third question. Why did the child in the poem like looking at the pictures? Why means क्यों जो बच्चा था पोएम में उसको अच्छा लगता था बुक्स देखना. टेल एवरीबडी टेल. थिंक कैसी बुक्स थी वो. पिक्चर्स की बुक थी. तो कैसी पिक्चर्स थी वो. दोज वर वंडरफुल पिक्चर्स. और मैम ने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में. एब्सोल्युटली राइट. बेबीज किड्स जो होते हैं वो पिक्चर्स देख के ही स्टोरी को समझ जाते हैं, और कलरफुल पिक्चर देख के इट लुक्स वेरी नाइस. सो द आंसर इज दिस ओनली. द चाइल्ड इन द पोएम liked looking at the pictures because by looking at the wonderful pictures child understood the story. उन पिक्चर्स को देख के उस बच्चे को वो पोएम स्टोरी समझ में आ गई. हमने यहाँ वंडरफुल भी लिखना है और अंडरस्टूड. अंडरस्टैंड का होता है अंडरस्टूड. स्टोरी समझ में आ जाती थी. सबको समझ में आ गया. सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर्स ऐसे ही करेंगे. क्वेश्चंस विद ब्लैक पेन एंड आंसर्स विद ब्लू पेन एंड लीव अ लाइन. जिनके पास ब्लैक पेन नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं. यू राइट इट विद द ब्लू पेन ओनली. No problem. You can write it with blue pen, but no cutting, and do it neatly. Now we will move to the next page. Okay, we will move to the next page. What does the next page exercise is? Let's listen. What does listen means?
चलिए सुनते हैं. वैसे भी भगवान जी ने हमको, द गॉड हैज गिफ्टेड अस 2 ears. So let us listen. What does this says? Listen to the words. Come in, go out, go out. अंदर आ जाओ, बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ. और ये वर्ड्स हम कितनी बार सुनते हैं? We hear these words so many times and at so many places, isn't it? So let us see which all signs we have seen at these places. इन जगहों पर हमने कौन कौन से साइंस देखे हैं? घर पे, at home, when we are visiting somebody, at the entrance, उनके घर के अंदर जाने के रास्ते पर क्या लिखा होता है? थिंक सोचिए, आपने अपने घर के रास्ते सामने क्या लगाया हुआ है? जब हमारे घर कोई आता है हम उसका क्या करते हैं? वेलकम करते हैं ना, प्लीज़ आइए, या फिर प्लीज़ कम इन, या वेलकम, राइट? सेकंड है एट द वेजिटेबल शॉप. वेजिटेबल शॉप पे वेजिटेबल वाले जो भैया हैं, सब्जी वाले भैया, वो अपनी दुकान पे क्या लगाए रखें कि उनके वेजिटेबल्स जल्दी से बिक जाएं? थिंक करेक्ट. ताज़े फल, ताज़ी सब्जियाँ. ताज़ी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्रेश. आई नो आप सबको आंसर्स आते हैं, आई नो. तो फ्रेश वेजिटेबल्स. गुड. द थर्ड वन इज एट द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में हमने तो अभी पढ़ी ही है अपनी पोएम, है ना? उसमें फर्स्ट लाइन क्या लिखी थी पोएम में? ये जो बुक्स हैं वो क्या कहती हैं? कम इन. यस, द लाइब्रेरी सेज कम इन. One thing more there is written in the library. I told you in the poem also. कैसे होके पढ़ते हैं वहाँ पे सबके सब? साइलेंस में. यस, साइलेंस प्लीज. दिस इज ऑल्सो रिटन. एट द डॉक्टर्स प्लेस, डॉक्टर के पास क्या लिखा होता है? वहाँ पे भी लिखा होता है गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाइए, या फिर कम इन. बस स्टॉप पे क्या लिखा होता है? थिंक. यस, बस स्टॉप में हमें कैसे क्लाइंब करना होता है? इन अ लाइन. तो क्या कहते हैं? वेट फॉर योर टर्न, स्टैंड इन अ क्यू. लिखा होता है बस स्टॉप पे, है ना? वेट हियर, यहाँ पे रुकिए, वेट हियर. और एट द टॉय शॉप, आप किसी टॉय शॉप पे जाते हैं तो टॉय शॉप वाले भैया क्या कहते हैं? थिंक क्या कहते हैं? मेरे खिलौनों को छूना नहीं. डू नॉट टच. देखिए और खुश रहिए. डू नॉट टच. ओके, सो रीड देम वंस एंड थिंक. आप सभी उन्हीं दुकानों पे जाइए, अपने मन में, अपने दिमाग में सोच के देखिए, जब मैं उस दुकान पे गई थी तो वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ था. आपको सोचना है और लिखना है. अंडरस्टूड? Very good. I know you all know the answers. So we will meet soon. आपकी मैम वापस आएंगी. In the next video of this poem, we will together make word family. हम कुछ words बनाएंगे. Words की family से हमारे alphabets A to Z से, vowels में से E, U, and I. We'll make some words. Till then, you have to do what? Cool. Take care of yourself. Stay safe. Stay healthy. And don't forget to wear a mask when you go out. And maintain distance. Yes. Maintain some distance. And please don't forget to subscribe the Atal Adarsh Shiksha channel. And please like my video. I miss you all. I love you all. My lovely students. I hope we see each other soon. Thank you. Bye bye and take care.